जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 12th क्लास ਦੀ इंग्लिश ਦੀ बुक A Rainbow of English ਉਸਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਚੇਂਜ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਟਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋਰ ਹੈ 11th 12th ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੋ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਯੂ। ਸੈਡ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੂ ਦਾ ਡਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। he told me that he did not believe me, you ਦਾ me ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਾ said to Arjun go away, ਇਹ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਮਾ ਆਰਡਰਡ ਅਰਜੁਨ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਮ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਤੇ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਅਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਡ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ the prince said ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, gives ਦਾ gave ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, here ਦਾ there ਬਣ ਜਾਏਗਾ, this ਦਾ that ਬਣ ਜਾਏਗਾ। so the prince said that it gave him great pleasure to be there that evening, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ he said I shall go as soon as it is possible, shall ਹੋਵੇ ਜਾਂ will ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ would ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। so he said that he would, shall करके वुड बन जाएगा, ही वुड गो एज सून एज, इट इज द बन जाएगा वाज, इट वाज पॉसिबल, ठीक है। आगे चलिए, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, फिर इंटरोगेटिव आ गया। सो ही आस्क्ड हिम इफ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਹੋਵੇ ਆਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਇਫ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਨॉट ਅਹਿਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਬॉयਜ਼ ਸੈਡ ਦੀ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਟੀਚਰ ਆਰਡਰਡ ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਆਰਡਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਟੀਚਰ ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਟੀਚਰ ਆਰਡਰਡ ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਡਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲਿਸ ਸੈਡ ਹਾਊ ਕਲੈਵਰ ਆਈ ਐਮ, ਐਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਚਤੁਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ। ਐਲਿਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਚਤੁਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਸਮੁਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਮੁਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਿਸ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਐਲਿਸ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ। ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਿਸ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਲਿਸ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਡ ਸੋ ਫਾਸਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹਿਮ ਨਾਟ ਟੂ ਰੀਡ ਸੋ ਫਾਸਟ,
यहाँ द टीचर इंस्ट्रक्टेड हिम नॉट टू रीड सो फास्ट। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट पिक्चर। हम देखो ए इनडायरेक्ट स्पीच है, इन्होंने डायरेक्ट विच कन्वर्ट करना है। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट पिक्चर, ए बन जाएगा अब्दुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैड करना रिवर्स जावांगे पुठा, हैव आ जाएगा। आई हैव सीन दैट दा बन जाएगा दिस, आई हैव सीन दिस पिक्चर। ठीक है, आगे चलिए। पार्ट 2, डू एज डायरेक्टेड, अर्थात जिमें दस्या गया है, जिमें कहा गया है उवें करो। ते कहा गया कित्थे हैगा, ब्रैकेट दे विच दस्या गया भी की करना है। सो दिस मैंगो इज फिट, ब्रैकेट वर्ब दित्ती है ईट वरतन लई, ते क्या है इनफिनिटिव। इनफिनिटिव बच्चों यहाँ ते प्लेन वर्ब आंदी है फर्स्ट फॉर्म, ते यहाँ टू दे नाल आंदी है, सो टू आएगा। दिस मैंगो इज फिट टू ईट, अर्थात यह अंब खाण योग है, ये तोता होया है, साफ सुथरा है। ठीक है। टू अर मैंने गलती करनी, टू अर इज ह्यूमन, अर्थात मनुख भुलनहार है, इत्थे भी इनफिनिटिव वरतना सीगा। सो अर मैंने अंदर गलती करना, सो टू अर इज ह्यूमन। हुण दूजा तीसरा है बच्चों, दो सेंटेंस ने, शी विजिट्स द पुअर, वो गरीबां कोल जांदी है। शी इज एंशियस टू रिलीव दैम ऑफ देयर सफरिंग्स, वो उन्हां दे कष्ट नूं दूर करन लई उतावली रहिंदी है। एंशियस मैंने उतावली, चिंतित। ठीक है। कहते कंबाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस। सो मैं दो तरीके ने किया बच्चों, एक है तो दूजा है। सो इन्हें इधर लिख सकते हैं, एंशियस टू रिलीव देम ऑफ देयर सफरिंग्स, कॉमा शी विजिट्स दी पुअर, एक तरीका है। दूजा लिख सकते हो, शी विजिट्स द पुअर बिकॉज शी इज एंशियस टू रिलीव देम ऑफ देयर सफरिंग्स। ठीक है, आगे चलिए। हियर है इतने, अ नॉइज अ टर्न अराउंड, आई टर्न अराउंड, तो पार्टिसिपल वरतना। पार्टिसिपल दो रूपों में हो सकता है, ING भी लग सकता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म होती है, या हैविंग लग सकता है। सो हियरिंग अ नॉइज आई टर्न अराउंड, अर्थात रौला सुनते हुए, रौला सुनिया तो मैं पिछे मुड़िया। ठीक है, आई टर्न अराउंड। इनू असी इदा भी लिख सकते थे, हैविंग हर्ड अ नॉइज, हैविंग हर्ड अ नॉइज भी लिख सकते सी, वो भी हैविंग हर्ड भी पार्टिसिपल ही है। सो असी हेयरिंग अ नॉइज भी लिख सकते हैं, आई टर्न अराउंड, तो हैविंग हर्ड अ नॉइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी मेरे दिमाग च आया कि इन्हों हैविंग हर्ड अ नॉइज भी लिख सकते हैं। आगे चलिए। सो आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, पार्टिसिपल ING वाला, आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, अर्थात मैं झक्खड़ नूं आउंदे वेख्या, कि दूरों जिद्दां देखा कि झक्खड़ आ रहा, तूफान आ रहा। फिर कहते कंबाइन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। दो ने, दी हंटर टुक अप हिज गन, अर्थात शिकारी ने अपनी बंदूक ऊपर चक्की। ही वांटेड टू शूट द लायन, वो शेर नूं गोली मारनी चाहुंदा सी। ਇਹ दो सेंटेंस में करांगे, ਇਹਦੇ भी दो तरीके ने। वांटिंग टू शूट दी लायन, अर्थात शेर नूं गोली मारन दी चाह रखते हुए, दी हंटर टुक अप हिज गन, शिकारी ने अपनी बंदूक ऊपर चुकी। दी हंटर टुक अप हिज गन, यह दूजा तरीका है, एज ही वांटेड टू शूट दी लायन, अर्थात शिकारी ने अपनी बंदूक ऊपर चुकी क्योंकि वो शेर नूं गोली मारनी चाहुंदा सी। ठीक है। फिर आगे बच्चों हंट है, हंट मैंने शिकार करना, तो इतने जिरुंड वरतना, जिरुंड मैंने वर्ब के नाल ING लग जाती है, तो फिर नाउन के तौर पर वरत्या जाता है। सो हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया, वट इज नॉट अलाउड, हंटिंग डियर। सो फ्रे एक किस्म का नाउन फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज। ठीक है। सो हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया। सो इतने मेक ते कहते जिरुंड वरतना है, जिरुंड का मतलब वर्ब के नाल ING लगेगा। सो चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, कासल होंगे किले, मड मैंने मिट्टी, मिट्टी के किले, गिली मिट्टी को असीं बच्चों किले बनाते होंगे सी छोटे होंगे। सो चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, अर्थात बच्चे मिट्टी के किले बनाना पसंद करते हैं। अगला आगे बच्चों चेंज दी वॉइस, आखिरी सेक्शन है तीसरा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला डज शी नो यू, तेरा बन जाएगा इज शी नोन टू यू। नो दे नाल मतलब कि जो वर्ब जिथे वर्त अपनी एक्टिव पैसिव नोन नो दे नाल असी टू वरतते हैं, नोन दे नाल बाय नहीं वरतते। ठीक है। सो इज शी नोन टू यू। विल यू पोस्ट द लेटर, यह बन जाएगा विल दी लेटर, तो विल आएगा तो बी लगता होंगे, बी पोस्टिड बाय यू। याद रखना बच्चों, जी पैसिव वॉइस है वो बी जमा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सो बी के किहड़े रूप ने, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बी, बीइंग ते बीन। ठीक है। यह जोड़े जिथे आ जाए तो नाल थर्ड फॉर्म आ जाए, यदा मतलब कि पैसिव वॉइस है।
सो शी हैज़ डन हर ड्यूटी, ठीक है। तो हैज़ डन का बन जाता हैज़ बीन डन, हैज़ बीन डन। सो हर ड्यूटी का बन जाएगा दी ड्यूटी हैज़ बीन डन बाय हर। अवॉइड बैड कंपनी दो तरीके ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਅਵॉइड बैड कंपनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, अर्थात ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਹਿਮ ਟੁਡੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਜ਼ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਹਿਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੀ इज ही बीइंग एक्सपेक्टेड बाय यू टुडे। आगे चलिए, आखिरी आ गया बच्चों, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं ये भारा डब्बा नहीं चुक सकता। सो दिस हैवी बॉक्स कैन नॉट का बन जाएगा, कैन नॉट लिफ्ट का बन जाएगा कैन नॉट बी लिफ्टेड, कैन नॉट बी लिफ्टेड। आई का बन जाएगा मी, तो मोरे लग जाएगा बाय, सो बाय मी, ठीक है। मे आई सी योर बुक, ठीक है। सो योर बुक, मे का मे इत्थे रहेगा, मे योर बुक। बी मे कैन माइट, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ कैन, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ बी लगता है। सो आई मे सी का बन जाएगा मे बी सीन, ठीक है ना। मे योर बुक बी सीन बाय, आई का बन जाएगा मी, ठीक है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जिथे आई एन जी आ जाए उत्थे पैसिव वॉइस बन जाता है बीइंग, बीइंग लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी। सो वेस्टिंग का बन गया बीइंग वेस्टेड, आर हैगा तो इज आ जाएगा। सो योर टाइम आर वेटिंग का बन, आर वेस्टिंग का बन जाएगा इज बीइंग वेस्टेड बाय यू, ठीक है। व्हेन विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क, जिथे हैव फिनिश्ड इदा होए वो बन जाएगा हैव बीन फिनिश्ड, याद रखना बच्चों। जिथे हैव उत्थे आ जाएगा हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, ठीक है। सो व्हेन द व्हेन इत्थे स्टार्टिंग जिहड़े WH वाले हैगे ने सवाल, एच वाला है हाउ, वो उधर वो स्टार्टिंग ही रहेगा। सो व्हेन विल हर वर्क हैव फिनिश्ड दा बन जाएगा हैव बीन फिनिश्ड बाय शी दा बन जाएगा हर ते अगे क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू नॉट कॉल इन द डॉक्टर, तुसी डॉक्टर नू क्यों नहीं सददे। सो वाई दा वाई इत्थे रहेगा, क्योंकि डू प्रेजेंट फॉर्म हैगी है, मतलब प्रेजेंट टेंस हैगा, सो इज आएगा क्योंकि डॉक्टर एक वचन हैगा। सो वाई इज द डॉक्टर, नॉट कॉल, नॉट कॉल्ड इन, कॉल इन हैगा, इन प्रैपोजिशन हैगा तो प्रैपोजिशन वर्ब दे नाल ही जांदा है। सो कॉल इन दा बन जाएगा कॉल्ड इन। वाई इज द डॉक्टर नॉट कॉल्ड इन बाय यू। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे इस लैसन दियां 3 ग्रामर एक्सरसाइजेज, जिहदे विच असीं पहला कीता है चेंज दी नरेशन, दूजा सी फिल इन दी ब्लैंक्स, उह वखरियां वखरियां चीज़ां सीगियां, ते तीसरा सी चेंज दी वॉइस। सो प्यारे विद्यार्थियों तुसीं इसी तरह मन लगा के अनुशासन के नाल अपनी पढ़ाई करी चलो। तो अगले वीडियो तक लिए गुड बाय। बड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।